یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. شام کے 7:41 ہوئے ہیں. پیش خدمت خبرنامہ. سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف سے جموں کشمیر سے متعلق دیے گئے بیان کو کیا سختی سے مسترد. بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم نے احمد آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری بارڈر گواسکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ میچ کا کیا مشاہدہ. صوبائی کمشنر کشمیر نے سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں کے کام کا کیا شبانہ معائنہ. ضلع کپواڑہ کے ترقیاتی منظرنامے کا بھی لیا جائزہ. اور جموں کشمیر میٹھے انقلاب کی راہ پر گامزن. ایپی کلچر کے فروغ کے لیے 46 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع. اور پیش ہے خبروں کی تفصیل. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خواتین امن اور سلامتی کے موضوع پر مباحثے کے دوران جموں کشمیر سے متعلق پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی زرداری کے بیان کو گمراہ کن، بے بنیاد اور سیاسی اغراض پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ روچیکا کامبوج نے کہا کہ اس طرح کے بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی توجہ ہمیشہ مثبت اور دور اندیش ہے اور رہے گی. انہوں نے کہا کہ یہ مباحثہ خواتین امن اور سلامتی کے ایجنڈے کے مکمل نفاذ کو تیز کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو مستحکم کرنے کے تئیں انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے آج احمد آباد میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ میچ کا مشاہدہ کیا. دونوں رہنماؤں نے متعلقہ ٹیم کے کپتانوں کو ٹیسٹ کی ٹوپیاں دیں. بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کرکٹ دوستی کے اس سال 75 برس پورے ہو رہے ہیں. دونوں رہنماؤں نے اسٹیڈیم کا چکر لگایا اور تاریخی میچ دیکھنے کے لیے وہاں موجود بڑی تعداد میں لوگوں نے ہاتھ ہلا کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کا خیر مقدم کیا. بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان گواسکر بارڈر کرکٹ ٹرافی کا آج چوتھا میچ کھیلا جا رہا ہے. دونوں وزرائے اعظم نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہوئے کرکٹ مقابلوں کی تاریخ دکھانے والے فرینڈشپ ہال آف فیم کا افتتاح کیا. صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے آج شمالی ضلع کپواڑہ کا دورہ کر کے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا تفصیلی جائزہ لیا. کپواڑہ پہنچنے پر انہوں نے سب سے پہلے کولنگام میں زیر تعمیر ٹرانزٹ رہائشی سہولت پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہیں جانکاری دی گئی کہ 34 کروڑ 56 لاکھ روپے کی لاگت سے زیر عمل یہ پروجیکٹ 18 بلاکوں اور 288 فلیٹوں پر مشتمل ہے. انہوں نے عمل آوری ایجنسی R&B کو یہ پروجیکٹ 15 اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایت دی. صوبائی کمشنر نے ہلپل اور گوس میں زیر عمل امرت سرور واٹر فرنٹ کے علاوہ کچھ دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کا برسر موقع جائزہ لیا. انہوں نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع انتظامیہ کے دیگر افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے انہیں ہدایت دی کہ وہ لوگوں کے الگ الگ نوعیت کے مسائل زمینی سطح پر حل کرنے کے لیے ہم وقت متحرک رہیں. اسی دوران ڈویژنل کمشنر نے کل دیر شام سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے CEO اطہر عامر خان اور SMC کے دیگر افسروں کے ہمراہ شہری سری نگر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا اچانک معائنہ کیا. انہوں نے نائٹ شفٹ میں چل رہے پروجیکٹوں پر جاری کام کا جائزہ لیا. انہوں نے اس کے علاوہ فور شور روڈ، شالیمار کنال، بلوارڈ واک وے، سونٹ کول، چنار باغ، ریزیڈنسی روڈ، MA روڈ، گھنٹا گھر، بٹمالو، کمرواری، مومن آباد اور راج باغ ریور فرنٹ شامل ہے. صوبائی کمشنر نے متعلقین کو سبھی کام وقت رہتے مکمل کرنے کی ہدایت دی. جموں کشمیر سرکار نے پیداواری مشاغل میں مغزبانی پر بھی توجہ مرکوز کی ہے، جس کی بدولت اب UT میٹھے انقلاب کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے. شہد کی مکھیاں پالنے کا رواج جموں کشمیر میں صدیوں پرانا ہے، لیکن اب سرکاری پالیسیوں کی بدولت بہت سے لوگوں کے لیے یہ سرگرمی باوقار روزگار کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے. مدھو مکھیاں پالنے کا شوق رکھنے والے کسانوں کو زرعی یونیورسٹیوں کے علاوہ کرشی وگیان کیندر اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے نہ صرف ضروری تربیت فراہم کی جاتی ہے بلکہ ان کی تکنیکی صلاحیت بھی بڑھائی جاتی ہے اور ایپی کلچر کو خود روزگار یونٹ کے طور لینے والوں کو محکمانہ مالی معاونت بھی فراہم کی جاتی ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ جموں کشمیر میں شہد کی پیداوار 66,000 کوئنٹل تک سالانہ بڑھانے کے لیے 46 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس کے تحت 1,43,000 شہد کے چھتے قائم کرنے کا نشانہ ہے. اس پروجیکٹ کے تحت متعلقہ کسانوں کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ درج ہونے کی امید ہے.
स्किम सोरा के शोबा नेफ्रोलॉजी की तरफ से आज गुर्दों के आलमी दिन के मौके पर गुर्दों की सेहत से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकाद हुआ। इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में गुर्दों की सेहत से मुतालिक आला मयार की तबी निगहदाश्त फराहम करने पर शोबा नेफ्रोलॉजी की सराहना की। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज स्किम्स के प्रिंसिपल प्रोफेसर रुबानी, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर बशीर अहमद लावे और डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट ने भी माहिराना तकारीर करके इस दिन के मौके पर गुर्दों की बीमारियों, इलाज और एहतियात के बारे में शिरका को जानकारी दी। आज के दिन के मौजू से एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से मिशन यूथ की तेजस्विनी रोजगार स्कीम के तहत 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज हो गया है, जिसका इफ्तिताह इदारे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने किया। जम्मू में मुनाकद किए जा रहे इस तरबियती प्रोग्राम में जिला जम्मू से ताल्लुक रखने वाले खातून उम्मीदवार शिरकत कर रही हैं, जिन्हें कारखानादारी और तिजारत की सूरत में खुद रोजगार कमाने के बारे में मनसूबाबंदी, तकनीक और मार्केटिंग जैसे अमूर के बारे में तरबियत दी जाएगी। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सलाहियत साजी के जरिए खवातीन को खुद इन्हिसार बनाया जाना है। हफ्ता निस्वां की तकरीबात से जोड़ते हुए मौसूफ ने इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली खवातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनका किरदार निहायत ही अहम है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो से समाअत कर रहे हैं। खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन और हफ्ता नस्वां के सिलसिले में आज भी वादी के मुख्तलिफ अजला में मुतादिद प्रोग्रामों का इनाकाद किया गया, जिस दौरान समाज और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन के अनथक रोल और उनकी खिदमत को उजागर किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करालपुरा कुपवाड़ा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल, सखी वन स्टॉप सेंटर बांडीपोरा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पुलवामा, कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस दलना, डिग्री कॉलेज कलम कोलगाम और दीगर कई इदारों की तरफ से आज हफ्ता नस्वां और खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ नवीयत के प्रोग्राम मुनाकद किए गए, जिस दौरान खवातीन के बेलूस जज्बा एसार को सलाम पेश किया गया। नाज़्म बागबानी कश्मीर जीआर मीर ने कुदरती माहौल और आब हवा का तवाजुन बरकरार रखने में पेड़ पौधों की अहमियत उजागर करते हुए महकमे के अफसरों और मुलाजमीन से ताकीद की है कि वो जहां मौका मिले वहां पौधे लगाएं। मौसूफ आज महकमे के सदर दफ्तर में शजरकारी की मुहिम का आगाज करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जहां उन्होंने मेवादार दरख्त लगाया। मौसूफ ने बाद में पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी राजबाग का मुआयना करने के अलावा जिला बड़गाम का भी दौरा किया। राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज रियासी में बीजेपी वर्करों की एक मीटिंग की सदारत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक देरपा सयाहती खत्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने बाद में जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में मरकजी मोहलत वाली स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर मुख्तलिफ असामियों के लिए कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तहान का इनकाद करेगा। ये इम्तहानात यूटी के मुख्तलिफ अजला में लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हर इम्तहानी मरकज पर मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इम्तहानी मराकज के इर्द गिर्द दफा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। मुतल्लिका जिला इंतजामिया की तरफ से हर इम्तहानी मरकज के लिए जनरल ऑब्जर्वर और जनरल मजिस्ट्रेट के अलावा महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए IT प्रोफेशनलों को तैनात किया जाएगा। इम्तहान में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा तमाम इम्तहानी मराकज में कम फ्रीक्वेंसी के जैमर भी लगाए जाएंगे, ताकि ब्लूटूथ और वाईफाई से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। भारतीय सिनेमा के माने जाने अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का आज इंतकाल हो गया है। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में पैदा हुए अदाकार ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले थिएटर में काम किया था। सतीश कौशिक ने 1983 में मासूम फिल्म से अदाकारी की अपने सफर की शुरुआत की थी। बतौर अदाकार उन्हें 1987 में मकबूल फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के तौर, जबकि दीवाना मस्ताना में पेजर पप्पू के नाम से पहचान मिली थी।
सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया था। जिला कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूनिसो लंगेट का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने 5 मुलाजिमों को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया। मामले को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने सीएमओ कुपवाड़ा को इन मुलाजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम सादर किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पिछले माह तुर्की और शाम में आए तबाहकुन ज़लज़ले से अकेले तुर्की में $100 अरब के नुकसान का अंदाजा है। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम UNDP की तुर्की में मौजूदा नुमाइंदा लूसिया विंटन ने मजीद बताया कि इसमें बहाली के काम पर आने वाली लागत को शामिल नहीं किया गया है। विंटन तुर्की में गाज़ियानटेप मुकाम पर वर्चुअल मोड पर सहाफ़ियों से बातचीत कर रही थी। फरवरी के अवाइल में तुर्की और शाम में आए 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले में 50,000 से ज्यादा लोग जाम भाग हुए थे। क्रिकेट में खवातीन प्रीमियर लीग में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 11 रन से हरा दिया। स्नेहा राणा की क़यादत वाली गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाकर जीत के लिए 202 रन का निशाना रखा। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। गुजरात जायंट्स की तरफ से एशली जेंडर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज के शेड्यूल के मुताबिक मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में अब से कुछ देर पहले वाली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ शुरू हो गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल रहेगी। हुकाम ने यह फैसला पहले ही लिया था कि हाईवे के खस्ता हाल मुकामात की तजदीद मरम्मत हर जुम्मे को की जाएगी। अहकामात के पेश नजर नाशरी से नवयुग टनल तक कल सुबह 6 बजे से अगले रोज की सुबह 6 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी आयद रहेगी। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।